اب آ گیا ہے فیصلہ، اور یہ فیصلہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں سب کو پتہ تھا، پاکستان کا نہیں دنیا کا بچہ بچہ جانتا تھا، جو پاکستان کی سیاست سے تھوڑی بہت دلچسپی لے رہا تھا، سب کو معلوم تھا، ہمارے سفارت خانوں کو معلوم تھا، یعنی کہ جو اسلام آباد میں غیر ملکی سفارت خانے ان کو معلوم تھا، اور ہمارے جو پاکستان میں جو مزدور ہے، کسان ہے، کھیتوں میں کام کر رہا ہے، دور دراز، اس کو بھی پتا تھا یہ فیصلہ آنا ہے اس لیے کہ یہ ساری محفل سجائی ہی اس لیے گئی تھی کہ سپریم کورٹ کے آئینی فیصلے کو آپ نے کالعدم قرار دینا تھا اور ایک غیر آئینی فیصلہ مسلط کرنا تھا۔ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف سے لے کر واپس لوٹا دی ہیں، کن کو؟ ہارے ہوئے لوگوں کو، جن کے پاس عوامی مینڈیٹ ہی نہیں ہے، جن کے پاس جعلی فارم 47 ہے، ان کو لوٹا دی ہیں۔ پہلے ذرا دیکھیے گا جی کہ 7 ججز نے یہ فیصلہ دیا ہے، اس کے باوجود کہ سارے اپنے منتخب کردہ تھے، لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ ابھی رمق باقی ہے، سسٹم میں ابھی رمق باقی ہے، اس لیے مایوس نہیں ہونا، اور مایوس اس لیے نہیں ہونا کہ اگر یہ متفقہ فیصلہ ہوتا تو مجھے یقیناً میں اور آپ کو مایوس ہونا چاہیے تھا کہ سارے کا سارے ججز جو ہیں وہ ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنا ضمیر شمیر سرنڈر کر دیا ہے، تو ہم کہہ سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہ 13 رکنی بینچ بنایا گیا تھا، سب سے پہلے 13 رکنی بینچ تھا، 13 رکنی بینچ میں سے 2 آنریبل ججز پہلے ہی نکل گئے، اور اس میں جسٹس عقیل عباسی صاحب نکل گئے اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نکل گئی، اور انہوں نے شروع میں کہہ دیا کہ یہ پیٹیشنز قابل سماعت ہیں ہی نہیں، اس لیے پہلے فیصلے پر عمل درآمد کریں، اس کے بعد ریویو پہ آئیں۔ یہ آلریڈی فیصلے پہ عمل درآمد ہی نہیں کر رہے، اور یہ ہیں ہی بدنیت، اور ان کو معلوم تھا، دور اندیش تھے، ان کو معلوم تھا یہ ساری محفل اسی لیے سجائی گئی ہے کہ ہم سے ٹھپا لگوانا چاہتے ہیں، لہٰذا جسٹس عقیل عباسی اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے اپنا ججمنٹ دی، اور وہ اس بینچ سے الگ ہو گئے، اور اس طریقے سے باقی رہ گئے 11 ججز کے بعد پھر آج پھر جسٹس صلاح الدین صاحب ہیں، وہ بینچ سے چلے گئے، انہوں نے کہا کہ مجھ پہ اعتراض ہوا ہے تو اس لیے مناسب نہیں ہے، یہی میرے لیے مناسب ہے کہ میں اس بینچ کا حصہ نہ بنوں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ غیر آئینی ترمیم کے بعد جو جج صاحبان آئے ہیں وہ اس بینچ میں نہ بیٹھیں، کیونکہ وہ اس کے بینیفیشری ہیں۔ یہ اصل مسئلہ کہ 26ویں غیر آئینی ترمیم کے بینیفیشری جو ہیں وہ اس بینچ میں بیٹھے ہیں، اور 26ویں غیر آئینی ترمیم کا فیصلہ بھی ہونا باقی ہے، اس لیے جسٹس صلاح الدین صاحب اٹھ کر چلے گئے، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بریک لی جاتی، لیکن جج صاحبان غصے میں آ گئے۔ حاجی امین الدین صاحب کو بھی بہت غصہ آیا، اور ہم نے جسٹس مندوخیل صاحب کو بھی آج خلاف معمول بہت غصے میں دیکھا، اور انہوں نے بھی غصے میں آیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم 10 منٹ بعد دوبارہ آ رہے ہیں۔ جسٹس حاجی امین صاحب نے کہا، وہ واپس آئے، اور واپس آ کے جو ہیئرنگ پڑی ہے وہ سن لیں کہ حامد خان صاحب کے ساتھ ان کا رویہ کیسا تھا، اور ایسے ہی تھا کہ بس ہر صورت میں آج فیصلہ کرنا ہی کرنا ہے۔ تو خیر فیصلہ اناؤنس کر دیا جی آج، اور فیصلے میں انہوں نے لکھا ہے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا لکھا ہوا فیصلہ 12 جولائی کا سپریم کورٹ کا فیصلہ وہ واپس لے لیا، نظر ثانی وہ فیصلہ واپس لیا نظر ثانی کے، اور اس کے تحت، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں، عدالتی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس طریقے سے آپ اپنا فیصلہ واپس لے لیں، اور جن ججز نے یہ فیصلہ دیا تھا وہ اس بینچ کا حصہ ہی نہیں ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ صرف اس بینچ کو اس بینچ کی سربراہی کون کر رہے ہیں، اس سو کالڈ آئینی بینچ کی، وہ کر رہے ہیں حاجی امین صاحب، اور حاجی امین صاحب اور نعیم افغان صاحب، یہ اس بینچ کا حصہ ہیں، جنہوں نے اختلاف کیا تھا، جن کا اختلافی نوٹ تھا، ان کو اس بینچ کا سربراہ بنا دیا گیا۔ یہ پہلی میلافائڈی ہے، اس کو قانون کی زبان میں کہتے ہیں بدنیتی، اس کو یہ میلافائڈی پہلی ہے، اور اس کے بعد ان کو سربراہ بنایا گیا۔ آئینی بینچ وہ سارا آپ کو معلوم ہے کہ ایک ترمیم کر کے اور سارا کچھ کر کے یہ ڈرامہ کیا گیا۔ تو صورتحال آج پھر فیصلہ آیا جی، فیصلہ یہ آیا ہے کہ سپریم کورٹ کے مختصر فیصلے کو آج انہوں نے کالعدم قرار دے دیا، اور اس میں جو 7 آنریبل ججز اس میں شامل ہوئے، اور ان میں جنہوں نے آج فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے، اس میں جسٹس حاجی امین الدین صاحب ہیں جی، اور حاجی امین صاحب اس بینچ کے سربراہ تھے،
उस बेंच में उस इख्तिलाफी नोट का हिस्सा थे, जो उन्होंने लिखा था, और उनको आज सरबराह बनाया गया, और जस्टिस अमीन जी, और उसके बाद दूसरे जज साहब हैं मुसर्रत हिलाली साहिबा, ये भी उस बेंच का हिस्सा थी, लेकिन इन्होंने अपना फैसला तब्दील कर लिया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान नईम अख्तर अफगान और जस्टिस हाजी अमीनुद्दीन साहब, ये दो ने इख्तिलाफी नोट लिखा था। तो दो के साथ जस्टिस मुसर्रत हिलाली, उनके रिमार्क्स आपने सुने, और जिस तरीके से वो हुई, तो वो उन्होंने आज फैसला तब्दील कर लिया। फिर इनमें जस्टिस शाहिद बिलाल, और उसके बाद अगला जी जस्टिस हाशिम काकड़ साहब, ये भी 26वीं गैर आइनी तरमीम के बाद इनको लाया गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में लाया गया और इस बेंच का हिस्सा बनाया गया। और जस्टिस हाशिम काकड़ साहब भी इस सारे बेनिफिशरी हैं, और क्योंकि 26वीं गैर आइनी तरमीम के बाद ये आए हैं जी। अब हाशिम काकड़ साहब ने आज सुबह की गुफ्तगू सुन लें, जस्टिस हाशिम काकड़ साहब की बलोचिस्तान से हैं। उन्होंने कहा कि काजी साहब तो मेरे उस्ताद हैं, मेरे मेंटोर हैं, और मैं तो उनके बारे में एक लफ्ज़ नहीं सुन सकता। तो उसका उन्होंने हामिद खान साहब के साथ काफ़ी तल्ख गुफ्तगू की कि मैं लानत भेजता हूँ, मैं ये करता हूँ, इस तरह की गुफ्तगू की, और उन्होंने कहा कि मैं अपने मेंटोर के बारे में नहीं सुन सकता। अब काजी फाइज ईसा साहब आपके उस्ताद हैं, हाशिम काकड़ साहब के बिल्कुल होंगे, और काबिल एहतराम है, उनके लिए काबिल एहतराम है। उन्होंने यकीनन उन्होंने भर्ती करवाया होगा, सब कुछ किया होगा, वो सब कुछ अपनी जगह पे मौजूद है। हाशिम काकड़ साहब की मैं दिल से इज्जत करता हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल एक नीचे से आए हैं, मेहनत करके आए हैं। एक मिडिल क्लास, मेरी और आपकी तरह की मिडिल क्लास है, और मेहनत करके आए हैं, और मैं उनको क्रेडिट देता हूँ। और लेकिन जब मामला आता है ना जी, आईनी और कानूनी मामला आते हैं, तो फिर उसमें फिर आइन बालादस्त होता है, फिर बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां देना पड़ती हैं। अगर उस्ताद आपका गैर आइनी काम कर रहा है, गैर कानूनी कर रहा है, और एक ऐसा फैसला दे के गया है जिसकी वजह से ये सारा पाकिस्तान का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है, तो मेरा ख्याल है कि उसको ज़रा सोचना चाहिए। तो फिर ऐसे उस्ताद के बारे में सोचना चाहिए, ऐसे उस्ताद पे फ़ख्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो उस्ताद आप ऐसे उस्तादों पे फ़ख्र नहीं करना चाहिए, ऐसे उस्तादों से जान छुड़ा लेनी चाहिए, जो आइन को छोड़ दें, जो कानून को छोड़ दें, जो जमहूरियत को छोड़ दें। इसलिए ये सिचुएशन है। अब उसके बाद आते हैं जी अगली, ये तो जस्टिस हाशिम काकड़ साहब थे। जस्टिस आमिर फारूक साहब, उनको इस बेंच का हिस्सा बनाया गया। अब कौन नहीं जानता जस्टिस आमिर फारूक साहब के बारे में। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको खास तौर पे लाया गया, और कौन नहीं जानता कि उनकी वाबस्तगी क्या है, और वो क्या चाहते हैं, और उनके फैसले क्या हैं। इन शॉर्ट सादा सी बात है, ये इसलिए फैसला दिया गया है कि 27वीं गैर आइनी तरमीम की जा सके, क्योंकि 26वीं गैर आइनी तरमीम के लिए इनको लोगों को अगवा करना पड़ा था, खरीदने पड़े थे वोट, और लोगों को रिश्वत देना पड़ी थी, लोगों के घर तोड़ने पड़े थे, और उस पर बहुत ज़्यादा बदनामी हुई थी। अब इन्होंने कहा कि बजाय इसके ये काम करने के, पूरी का पूरा सारे का सारा जो है मखसूस नशिस्तें उठा के हम इनके हवाले कर देते हैं, और मामला ख़त्म कर देते हैं। और ये असल में जो 8 फरवरी 2024 का जो इलेक्शन है, उसके लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है कि उस पे पर्दापोशी की जाए, और उस पे कंट्रोल हासिल किया जाए कि आने वाले वक्तों में भी ऐसा कोई इसको छेड़ ना सके। ये मामला है जी। तशरीफ रखें जी। मेहमान आए हैं जी, तो इसलिए मैं ज़रा थोड़ा सा, क्योंकि आज घर पे कोई नहीं, तो सूरत हाल ये है कि इस वक्त सिचुएशन ये है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बुनियादी मकसद इसका यही है कि किसी भी तरीके से 8 फरवरी 2024 का जो इलेक्शन है, उस पे मुहर लगवाती जाए, लगाते रहें बार बार, और उसको खतरा महसूस ना हो। ये है असल मसला। अब पहले से अच्छा, ये फैसला जो है पहले से अनाउंस हो गया था, क्योंकि इनके जो सरकार के साथ जुड़े हुए दानिश्वर हैं, और जो नून लीग जाती उमरा से जुड़े हुए दानिश्वर हैं, वो पहले ही फैसला दे रहे थे कि एक भी नशिस्त पीटीआई को नहीं मिलनी। इसका मतलब है कि हुक्म हाकम यही था, और हुक्म हाकम के अकॉर्डिंगली ये सब कुछ किया गया है। और उसके बाद जी अब देखते हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको रिजेक्ट कर दिया। इसके खिलाफ एक नज़रसानी की पटिशन भी आएगी, क्योंकि वो भी राइट है उनका। तो मामला वही है कि आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें जमा होती रही हैं, होती जा रही हैं, और चूंकि प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात हो चुकी है हाफिज साहब की, और वो ताज़ा दम होके आए हैं, और इसलिए उनको वो समझते हैं कि उनको फिल वक्त कोई ऐसा खतरा दरपेश नहीं है, लिहाजा
कुछ और काम किए जा सकते हैं तो वो कर लिए जाएँ। उसके बाद है जी एक और खबर, उसको ज़रा पहले डिस्कस करते हैं, फिर जाएँगे ज़रा जनो साहब की तरफ। आज आज एक अंधोनाक वाक़या पेश आया है और वो है दरियाए सवात पे। 18 अफराद जो हैं वो देखते ही देखते पिकनिक मनाते हुए वो डूब गए और उनको बचाने वाला कोई भी नहीं था और अभी तक सिर्फ 8 लाशें निकाली गई हैं और 10 अभी तक लापता हैं और वो सारा वीडियो है 3 साढ़े 3 मिनट की और वो हमारी बेहिस्सी भी है और सब कुछ है और वहाँ पे कोई ना हेलीकॉप्टर पहुँचा, ना कोई और पहुँचा और हमारे जो हमारे शहरी हमारे दोस्त हैं, जो हमारे हमवतन हैं, वो भी वीडियो बनाते रहे और तकरीबन साढ़े 3 मिनट की वो तकलीफ़देह वीडियो है और उसमें पहली बात तो ये है कि वहाँ पे एक ऐसी जगह पे जाना ही नहीं चाहिए। ये ज़रूर बात करनी चाहिए कि जाना ही नहीं चाहिए और फिर दूसरा ये कि होटल वालों ने ऐसी जगह पे क्यों सारा कुछ स्टेज तैयार किया हुआ था और ये पहले इंडिया में वाक़या हुआ था और बहुत ही अफ़सोसनाक वाक़या हुआ था और वहाँ पे भी देखते ही देखते जो है ख़ानदान पूरे का पूरा लुक़्मा अजल हो गया था और अब जो है ये सुबह साढ़े 8 बजे जी ये बाईपास होटल के करीब 18 अफराद ये अचानक रेले में फँसे हैं और ये सूरत-ए-हाल हुई है और उसमें फँसे हुए अफराद 3 को हिफाज़त रेस्क्यू किया गया और बाकी उनमें से कोई भी ना बच सका। 9 अभी भी लापता हैं और इन 18 अफराद का ताल्लुक डस्का, पंजाब और मर्दान से है और इसमें कहते हैं जी हम अभी इंक्वायरी कर रहे हैं, लेकिन उस इंक्वायरी का क्या फ़ायदा कि हम उसको नहीं बचा सके और ये इमाम ढेर के मुकाम पर 22 अफराद फँसे हैं, उनको कहा जाता है जी अब रेस्क्यू किया जा रहा है। इस तरह के हादसात और इस तरह के वाक़यात जो हैं, वो होते रहते हैं और मामलात जो हैं वो बढ़ते रहते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ये एक इंतहाई इंसानियत सोज़ वाक़या है, जिस पे जितना भी अफ़सोस किया जाए कम है, क्योंकि वैसे तो बहुत हमारे भी जो दोस्त हैं, जिन्होंने वहाँ पे वीडियोज़ बनाते रहे और मनाज़र देखते रहे, उनको भी चाहिए था कि कोई ऐसी एक्टिविटी करते, कोई ऐसा एक्ट करते, जिससे ये कीमती जानें बचाई जा सकती थीं, लेकिन अफ़सोस के ये ऐसा ना हो सका।